प्रचारक महोदय, हमारे विद्यालय में बाहर से जो गेस्ट टीचर्स आए हुए हैं, सीएम प्राइमरी स्कूल के, और समस्त शिक्षक साथियों, प्यारे बच्चों और जितने भी प्रतिभागी हैं इस यूथ पार्लियामेंट का जो हम आज ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। जैसा सर ने अभी इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि ये प्रोग्राम तुम सबने सुना होगा संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। 6-7 के बच्चे शायद अभी उतना अवेयर ना हो। 8th में एक पूरा चैप्टर ही है वाई वी नीड पार्लियामेंट। तो ये वो संस्था है जो हमारे देश के लिए जितने भी नियम कानून हैं उनका बनाना, उनमें संशोधन करना, ये सारा काम संसद की तरफ से होता है। और भी बहुत सारे काम संसद के होते हैं। हम सबको पता है, जब हम विद्यालय आते हैं तो विद्यालय एक जगह ऐसी है जो हमारे एक तरीके से सर्वांगीण विकास की एक जगह है, हमारी पर्सनालिटी का ऑलराउंड डेवलपमेंट। पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। पढ़ाई में जो टॉपिक्स आते हैं उन टॉपिक्स को किस तरीके से हम एक्टिविटी के थ्रू कर सके, विद्यार्थी संसद जैसी महत्वपूर्ण संस्था के बारे में समझ सके, इसके लिए जो हमारा संसदीय कार्य मंत्रालय है, ये प्रत्येक वर्ष यूथ पार्लियामेंट की प्रतियोगिता आयोजित करता है। पिछले 2 वर्षों से ऑनलाइन होने के कारण ये संभव नहीं हो पाया था। इस बार उन्होंने सभी स्कूलों को ये उत्तरदायित्व दिया है कि अपने विद्यालय में इसको ऑर्गेनाइज करें और इसकी जो भी जानकारी है वहां तक भेज दी जाए। तो इन सब गतिविधियों का जो मुख्य मकसद है वो यही है कि हम अपने देश की संसद, उसकी कार्यवाही, हो सकता है इसमें आज जो चीजें होंगी, छोटे बच्चे हैं, कुछ उनको पूरी तरह से समझ में ना आए, बाद में अपने टीचर से इसके बारे में पूछ सकते हैं कि सर वो जो हुआ वो क्या था, ये कैसे होता है। तो ये कोशिश है, आप लोग इसको देखिएगा ध्यान से, काफी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो मैं प्रिंसिपल सर से अनुरोध चाहूंगा कि सर हम लोग इसको आरंभ करें। ठीक, अब मैं जो भी हमारे पदाधिकारी हैं आज के संसद के, उनको हैंड ओवर कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, Yes, ma'am. Miss Sanvi, who stands elected from Rampur constituency of Youth Parliament. Do you want to take oath or affirmation? Affirmation, please. In which language would you like to take affirmation? In English, please. I, Sanvi Gautam, who has been elected a member of the Youth Parliament, solemnly affirm that I will have faith in the Constitution of India as established by law, that I will uphold the sovereignty and unity of the country and perform the duties of the office I am about to assume. I will do it faithfully. Miss Janvi, who stands elected from Azamgarh constituency of Youth Parliament. Do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take oath? English, please. I am Janvi Mishra from Azamgarh Youth Constituency, having been elected as a member of Youth Parliament, House of the People, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duties upon which I am about to enter.
Ms. Asi, who stands elected from Sangaram constituency of Youth Parliament. Do you want to take oath or affirmation? Affirmation, please. In which language would you like to take affirmation? In Punjabi, please. मैं आशी अहलूवालिया जिन्हें संगरूर युवा पार्लियामेंट का मैंबर चुना गया है सच से वफादारी नाल ਇਹ शपथ लेंदी हाँ कि मैं विधि नाल स्थापित किए गए भारत देश के संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा रखांगी और देश की प्रभुसत्ता की एकता ਨੂੰ बनाए रखांगी नाल जोड़े पदों लैन वालियां ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਕਰਾਂਗੀ। Obituary reference. Honorable members, as you have made after a long period, it is my duty to inform you and the House about the demise of Bharat Ratna and Nightingale of India, Lata Mangeshkar, the great gem of India. Lata Mangeshkar passed due to multi-organ failure over after 28 days of COVID-19 diagnosis at the age of 92. Lata Mangeshkar was a legendary playback singer, a compassionate human being, and a towering personality in the world of Indian film and music industry. Her memorable songs and melodious voice will always, always and always remain in our hearts. With my words, I would like to pay my tribute to this legendary personality. Our nation will always be indebted for a valuable contribution in the world of Indian music and film industry. Om Shanti. Honorable Prime Minister, Madam Speaker, I would like to pay my tribute to the death of Bharat Ratna awarded Ms. Lata Mangeshkar. Her voice mesmerized and inspired the country for such a long time. It filled the country with emotion. Her contribution to the Indian music industry gained her titles such as the Queen of Melody and the Nightingale of India. She has sung more than 50,000 of songs in different languages. She was one of the most versatile singers in the Indian music industry. Her contribution has strengthened the cultural heritage and the unity of the country. She sang in 36 languages, that is itself an inspiring example for the country's unity. She will always remain in our hearts. Thank you. Leader of Opposition, please. माननीय महोदया, लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी जिनका 7 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। उन्होंने 30 से ज्यादा भाषाओं में गायन कार्य किया। आज वे हमारे बीच नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में कई सम्मान प्राप्त किए, बल्कि मेरी समझ से तो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न उन्हें पाकर सम्मानित हुआ। उनके सदाबहार गाने हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसी हस्ती को मेरा और विपक्ष का सच नमन। धन्यवाद। Now, I request the House to stand in silence for a while to express a deep sorrow. Secretary General may convey the message of condolences to the bereaved family. Question R. Question number 101, Mr. Swarnim Sahu, please. Honorable Madam Speaker, will the Minister of Culture be pleased to state the details of various initiatives taken by the Ministry and its affiliate organizations to celebrate the Azadi Ka Amrit Mahotsav till 28 February 2022. Honorable Speaker, I also want to ask the respected Minister whether the said Ministry and its affiliate organizations have taken any initiative to celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav in Gujarat, and if so, the details thereof, and if not, the reason therefore. And also, what are the future initiatives planned by the Ministry for the remaining period of Azadi Ka Amrit Mahotsav, and the details thereof? Thank you, Madam. Minister of Culture, please. Madam Speaker, I want to inform honorable member that various events and activities have
high participation of people. There are 5 teams that will guide the event and activities which are planned as the part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. First, freedom struggle. In this, Ministry of Culture will focus on the milestones of history, our glorious past, our unsung heroes and their bravery. Second, Action at 75. In this, it is highlighting the steps being taken to implement policies and actualize commitments like Ek Bharat, Shresth Bharat, Swachh Bharat, Digital India, Skill India, and many more. Third, Idol at 75. In this, we will focus on the idols and idols which unite the country like Vasudev Kutumbakam, national security, peace, justice, and many more. Third, Achievement at 75. In this, we will showcase the progress and evolution among different sectors like women, economy, youth, defense, and many more. Fifth, Resolve at 75. It is the reinforcing commitment to some specific goals like India 2.0, which is Visit for India in 2047. Answering to the second question asked by our honorable member, yes, the celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav was inaugurated on 12th March with Honorable Prime Minister flagging of Freedom March from Sabarmati Ashram to Dandi. Udan, the Kite Festival, and Umang, the Rangoli making competition on Makar Sankranti, Atmanirbhar Gram Yatra, and Tribal Freedom Fighter Memorial Function are taking place. Answering to the third question asked by the honorable member, the Ministry of Culture, in collaboration with other ministries, state ministers, UT administrations, prepared a number of programs under Azadi Ka Amrit Mahotsav celebration with concerned ministers to celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav for monthly period and which is taken to National Implementation Committee, which is headed by Honorable Home Minister for their approval. After their approval, the events will be curated with respect to concerned minister, state minister, UTs and many others with full public favor and maximum public outreach. Thank you, ma'am. Question number 102, Ms. Mimansha Keys. Honorable Speaker, Madam, will the Minister of Food Processing Industries be pleased to say, in today's time, we are seeing that everything is being adulterated, due to which our health is getting spoiled, and we soon fall prey of dangerous diseases like food poisoning, heart diseases, and cancer. During the reason, inflammation has an extreme level that a government is not able to live equally, because of which it is helpless to adulterate. Thus, the government have any action plan to bring down the inflammation of food items, or the government left the people on their own? Please clarify my question. Thank you, Madam. Minister of Food Processing Industries, please. Madam Speaker, I want to inform honorable member that Ministry of Food Processing Industries has undertaken various steps against food adulteration. The details of the steps taken by the ministry against food adulteration are as follows. Prevention of Food Adulteration Act 1954. This act ensures pure and wholesome food to consumers. This act was amended in 1964, 1976 and 1984. If anyone violates this act, then there is an imprisonment of 6 months to 1 year and a fine of 2,000 rupees. If adulteration causing hurt or death, then there is an imprisonment of lifetime and a fine of 5,000 rupees. Second, Food Safety and Standard Act 2006. This act contains various food-related acts such as Fruit Product Order 1955 and Meat Food Product Order 1973 etc. If anyone breaks the rules of this act, then there is a punishment of 6 months to lifetime imprisonment and a fine of 25,000 to 10 lakh rupees according to their crime. Thank you. अल्पकालीन प्रश्न क्रमांक 110, मिस्टर कार्तिक अनुरागी, प्लीज। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मेरा सवाल है कि सरकार या किसी एजेंसी ने देश भर के स्कूलों की शिक्षा और मूल्यांकन प्रक्रियाओं और आर्थिक परिस्थितियों पर कोविड महामारी के समझने के लिए सर्वेक्षण शुरू किया है? यदि हाँ, तो द्वारा इसी से जुड़ा अगला सवाल है कि इंटरनेट तक पहुँच रखने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है और महामारी की अवधि के दौरान स्कूलों में उपयोग किए जाने वाले आभासी शिक्षण के तरीकों का ब्यौरा क्या है? और मेरा अंतिम सवाल, ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान छात्रों की उपस्थिति का राज्यवार प्रतिशत कितना है और सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों के लिए प्रशिक्षण और संसाधनों के संदर्भ में सहायता प्रदान करने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं? संबंधी ब्यौरा क्या है? धन्यवाद। माननीय शिक्षा
Shiksha Mantri. Honorable Speaker Madam, I would like to inform the honorable member that A to B education is in the concurrent list of constitution and most of the schools, states and union territories comes under the authority of government. During the COVID-19 pandemic, the Ministry of Education has held consultation meetings with states and union territories to evaluate the various aspects of COVID-19 pandemic. The department has conducted a survey in July 2020 for the learning outcomes of schools. In July 2020 for the schools and for Kendriya Vidyalaya Sangathan and Navodaya Vidyalaya Samiti. Subsequently, further surveys were held in early 2021 regarding the availability of different types of digital devices. Navodaya Vidyalaya Samiti reported 92.9% and Kendriya Vidyalaya Sangathan reported more than 98% of students have full or partial access to any kind of partial digital devices. The National Achievement Survey (NAS) was conducted on 12th November 2021 to evaluate the learning outcomes of schools and students of class 3rd, 5th, 8th and 10th. Other means of virtual education used by the students during the pandemic include online classes, online YouTube videos, e-books, educational web TV channels, e-learning portions with students and teachers, WhatsApp group, local TV network channels and tele-helplines, etc. C. Madam, after the consultation with state and union territories, the multi-check approach has been adopted to leverage the technology to reach out to students in state and union territories. Diksha and the subject themselves on national education and e-content and e-textbook on national repository of NROER, online virtual lab for technical education, e-content and specialized resources for teachers with a experiential learning and competency-based activity. Our government also introduced Nishtha Online for capacity building programs that are being used by the schools to facilitate the learning. Thank you, Madam. No more question, please. 0R. Ms. Pragati Yadav, please. मेरी लोकसभा से खजुराहो में केंद्रीय विद्यालय नहीं है। यहाँ केंद्रीय विद्यालय खोलने का कार्य लंबे समय से विचाराधीन है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति लागू करके शिक्षा को सर्वव्यापी, उपयोगी एवं विश्व स्तरीय बनाने का निर्णय लिया गया। मेरे क्षेत्र में बच्चों की प्रतिभा में कोई कमी नहीं, बल्कि उन्हें अच्छी शिक्षा और अवसर की आवश्यकता है। मेरे क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में शिक्षण संस्थानों की कमी है। अतः मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वह मेरे क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोलने की कार्रवाई शीघ्र करें, जिससे यहाँ के बच्चों का सर्वांगीण विकास हो जाए। धन्यवाद महोदय। Calling attention motion. Now, the House will take up calling attention motion. Ms. Tanishka Singh to call the attention of Minister of Forest, Environment and Climate Change. Ms. Tanishka Singh, please. Thank you, Madam Speaker. I would like to divert the attention of Honorable Minister of Environmental, Forest and Climate Change towards the increasing threat of climate change and pollution in our country. Madam Speaker, we had to shut the school down because the condition is worsening. Madam Speaker, as we all say that the students are the future of our nation, then the future of our nation is coming to its receiving end and they are unknowingly becoming the victims of diseases like asthma. As all of us can sense that it is not only becoming a significant problem for human life, but also for our existence. Madam Speaker, according to a data from WHO, it has been stated that close to half of the deaths due to pneumonia are due to particulate matter inhaled from household pollution. As it is affecting the whole country, I really wish that respected Minister Sir is doing something in regards to this in Delhi. Well, another statistics from the Lancet Commission states that toxic air, polluted water and soil kill 9 million people per year, which is 3 times more than the deaths caused by AIDS, HIV and malaria. Among these 9 million deaths, India is on top with 2.5 million deaths. Even 15 out of 20 most polluted cities in the whole world are here in our nation. And I am very sure that all of us sitting here today are really proud of these facts and statistics. Well, the oxygen doesn't come from a caste, nor from a religion. It simply comes from the trees. A person can survive
survive without food or water for a few days, but without oxygen, he will simply die in a few minutes. Well, oxygen doesn't give both, but it does give life to all of us. Madam Speaker, at last I would like Honorable Minister to draw his attention on this very grave reality and take some effective steps forward, as the day is not far when all of us will come to this parliament while wearing oxygen mask. And who knows, after closing the school, we also have to close the parliament too. And if this happened, it would be a surgery for our democracy and democracy. Thank you. Honorable Minister of Environment, Forest and Climate Change, please answer. Honorable Speaker, Madam, I understand the concern of respected members on this very grave issue, and I appreciate them for their concern. But I would like to tell them that we are equally concerned over it and working wholeheartedly, because becoming the Minister of Environment, Forest and Climate Change, I do need clean water, pure oxygen and green climate. Thank you, Madam. Mr. Rizul Tiwari, please. धन्यवाद माननीय महोदया। माननीय महोदया, हम लोग जिस बुंदेलखंड क्षेत्र में रहते हैं, आर्थिक रूप से भले ही बहुत विकसित ना हो, किंतु पर्यावरण की दृष्टि से हर तरह से संपन्न है। पन्ना एवं जिला छतरपुर के बक्सवा के जंगल बहुत ही घने एवं कीमती सामान से भरे हुए हैं। सरकार औद्योगिकरण की मंशा से ललितपुर सिरौली रेलवे लाइन का काम शुरू करना चाहती है। उक्त रेलवे परियोजना का कार्य का कुछ हिस्सा पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजर रहा है। अगर ये कार्य हुआ तो वहाँ के पेड़ कटेंगे और हमें टाइगर स्टेट की पहचान देने वाले टाइगर ही नहीं रहेंगे। माननीय महोदय, बक्सवा के घने जंगलों में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बंदर प्रोजेक्ट के माध्यम से बेशकीमती जंगली जमीन को खोदकर हीरा निकाला जा रहा है। माननीय महोदया, अब आप ही मुझे बताइए, अगर हमारे असली हीरा ही हमारी जंगली जमीन और जंगल है, अगर ये ही नहीं रहेंगे तो हम खुदाई से मिले हुए हीरो का क्या करेंगे? बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ आखिरी में कि मोबाइल के युग में किसी आधुनिक शायर ने ठीक ही कहा है, धरती पर एक पेड़ अपलोड करके तो देखिए, हजारों बादल आएंगे लाइक करने के लिए। धन्यवाद माननीय महोदया। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय महोदय, बुंदेलखंड से मुझे और बल्कि हम सबको इस चीज पर गर्व है। हम सब चाहते हैं जिस तरह भारत के अन्य क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, उसी तरह ये बुंदेलखंड क्षेत्र भी विकसित हो। हमें डर है कहीं ये क्षेत्र भारत से बिखरा न रह जाए, इसलिए सरकार ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन का काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट में कुछ हिस्सा पन्ना टाइगर रिजर्व का जा रहा है। अगर हम एक पेड़ काटेंगे तो उसके बदले 3 पेड़ लगाएंगे भी, वहाँ के जानवर एवं पशु पक्षियों को कोई नुकसान नहीं होगा। हम उन्हें पन्ना टाइगर रिजर्व के दूसरे हिस्से में भेजेंगे। इसी खंडर में मेरे ख्वाब की गली भी थी, गली में पेड़ भी था और पेड़ में समर भी था। माननीय महोदय, मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2000 में ऑस्ट्रेलियाई कंपनी रियो टिंटो की मदद से एक सर्वे कराया। सर्वे के दौरान कंपनी को कुछ किम्बरलाइट पत्थरों की चट्टानें दिखाई दी थी। हीरा इन्हीं किम्बरलाइट के पत्थरों में मिलता है। अगर हमें क्षेत्र को विकसित करने के लिए इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो हम क्यों गंवाएं? जो लोग कहते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र विकसित नहीं है, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि हम उसे विकसित करके रहेंगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इस प्रोजेक्ट में जितने पेड़ जाएंगे हम उसे काटेंगे, लेकिन उससे अधिक लगाए भी जाएंगे। वहाँ के लोगों को नया कारोबार और घर मकान बना के दिया जाएगा। भारत में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ 3 ही ऐसे राज्य हैं जहाँ हीरे का उत्पादन होता है और भारत का 90% हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगर हम इस 90% हीरे को ही छोड़ देंगे तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र और यहाँ तक कि हमारे देश भारत के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि एक पेड़ अपलोड करके तो देखो 1000 बादल लाइक करने आएंगे। अगर उन्हें लगता है कि हमारी सरकार पेड़ काटती है, लगाती नहीं है, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, अगर हमारी सरकार एक पेड़ डिलीट करती है तो 3 पेड़ अपलोड भी करती है, उसे बादल नहीं बारिश लाइक करने आती है। धन्यवाद। Discussion under Rule 193. Now, the House will take up discussion under Rule 193. Minister of Defence, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार ने भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की एक ऐतिहासिक योजना शुरू की है। अग्निपथ योजना के तहत नामजद युवाओं को अग्निवीरों के नाम से भी जाना जाएगा। यह इस भर्ती के माध्यम से इसमें 40,000 अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे। यह एक 4
4 वर्षीय ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें अग्निवीरों को शस्त्र सेना द्वारा युद्ध के मैदान के लिए कौशल तैयार किया जाएगा। अग्निपथ स्कीम ओवरव्यू, कंडक्टिंग बॉडी इंडियन आर्मी, नेम ऑफ द स्कीम अग्निपथ रिक्रूटमेंट 2022, launched by Department of Military Affairs, number of vacancies 46,000, date of final notification, act to be updated, area of service Indian Army, Navy and Air Force, training duration 4 years and the age limit is 17.5 years to 23 years. Thank you, madam. Ms. Divyanshi Bhattacharya, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, अग्निपथ योजना 2022 सरकार लाई है। इससे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि मनरेगा का मजदूर को सरकार 100 दिन का रोजगार देती है और यहाँ अग्निपथ योजना में सरकार 4 साल का रोजगार। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने ये नियम बनाया है कि सेना में भर्ती अग्निवीरों को 4 साल में ही रिटायर कर दिया जाएगा। इससे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि सरकार ने भारतीय युवाओं को 4 साल में ही घर बैठाने की तैयारी कर ली है। महोदय, इस स्कीम से इस बात की आशंका है कि गांव-गांव में अग्निवीरों को निष्कासित कहा जाने लगेगा, यानी ऐसा भी सेना से निकाल दिया गया है। महोदय, इस योजना में तो भारतीय युवाओं के लिए अग्नि ही अग्नि दिख रही है, पद का तो कहीं पता ही नहीं चलता। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा कहा गया है कि जब ये रिटायर्ड होंगे तब ये आधुनिक बल, पुलिस तथा अन्य विभागों में जा सकेंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ऊर्जावान बने रहने का हक पुलिस तथा अन्य विभागों को नहीं? 4 साल बाद जब ये रिटायर्ड होंगे तब क्या इनके मनोबल पर नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा? जो सैनिक 4 साल में भी सेना में रहकर फिट नहीं हो पाया, भला मैं 4 साल बाद पुलिस, सीआरपीएफ तथा अन्य विभागों के लिए कैसे फिट होगा? महोदय, यह योजना भारत के युवाओं का मनोबल करने वाली आहत है। भारत का स्वाभिमान यानी यहाँ के सैनिकों के लिए यह योजना घातक है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना की सरकार को फायदे गिना रही है, जैसे कि रिटायर होने के बाद सरकार तथा अन्य विभाग इन्हें अपनी नौकरी में नियुक्ति देंगे। 4 साल तैयारी करो और 4 साल बाद बाहर। क्या इस तरह ट्रेनिंग देके सरकार भारतीय सैनिकों को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंपना चाह रही है? अगर अग्निवीरों से कोई पूछेगा कि ये सेना में रहकर 25% में क्यों नहीं आए, तब क्या प्राइवेट सेक्टर के बाजार में इनका भाव नहीं गिरेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के उपलक्ष्य में आज मैं इतना कहना चाहूंगी कि यह योजना है विनाशकारी। इस देश को यह मुसीबत ला रही है। सैनिक जो इस देश का स्वाभिमान है, यह योजना स्वाभिमान पर है भारी। यह योजना अग्निवीरों की जम की नहीं, उनकी चिता की है तैयार। धन्यवाद। Mr. Tavendra, please. Honorable Speaker, I rise to support this scheme. Madam, Agnipath scheme is one of the best schemes of our government has introduced. It provides golden opportunity to more and more youth in defense services to serve the country. Its advantages are, through Agnipath scheme, it is possible to select best quality enemies and excellent soldiers in technical and non-technical areas for defense services. Agnipath scheme provides attractive monthly package of ₹30,000 to ₹40,000 to newbies during their 4 years of involvement in defense services. Third, an amount of ₹10 lakh is paid by Agnipath Yojana Agniveer Corpus Fund after the completion of 4 years of involvement in defense services. Thank you. Ms. Ricky Gupta, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, अग्निपथ योजना 2022 जो सरकार लाई है उससे ऐसा लगता है कि सरकार 33 वर्ष के अफसर्स को सुस्त मानती है, जिससे इस योजना के अंतर्गत जवानों की कार्यशील आयु कर दी गई है। ये फॉर्मूला सरकार दूसरे विभागों में और सेना में ला रही है, जो इस देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है। क्या 50-55 वर्ष के ऑफिसर्स के होने से उस देश की सेना नहीं बढ़ती? क्या सरकार ये कहना चाहती है कि 50-55 वर्ष के ऑफिसर्स उस देश और सेना पे बोझ है? क्यों ना 50-55 वर्ष के ऑफिसर्स को भी 26 वर्ष में ही सेवा मुक्त कर दिया जाए? अगर सरकार ये योजना युवा होती भारत की आबादी को अधिक से अधिक नौकरी देने के लिए ला रही है, तो जाहिर है कि सरकार युवाओं को नौकरी के अवसर देने के लिए उनके पास कोई नई योजना नहीं है। महोदया, सरकार अलग अलग देशों से मटेरियल कॉपी कर नई किताबें बनवा रही है। इस योजना का नाम तो ऐसा रखा गया है जैसे कि अमिताभ बच्चन की कोई नई मूवी अग्निपथ रिलीज होने वाली हो। महोदया, सरकार कोई ऐसी भी स्कीम ला रही है जिसमें IAS, IPS, राष्ट्रपति,
पद और सांसदों को भी 4 वर्ष में रिटायर कर दिया जाएगा। इस तरह भारत भूतपूर्व होने वालों का अभूतपूर्व राष्ट्र बन जाएगा। ये इस योजना का नाम तो रखना चाहिए था भले जमाने में भूतपूर्व होने की अभूतपूर्व योजना। महोदया, इस योजना में सैनिकों का नाम भी दिलचस्प रखा गया है। शूरवीर नहीं, महावीर नहीं, क्रांतिवीर भी नहीं, अग्निवीर। मामला न्यायोचित लगे इसलिए अधिक उम्र की बात हो रही है कि 33 वर्ष की जवानों की कार्यशील आयु 33 वर्ष से 26 वर्ष कर दी जाएगी। क्या महोदया 33 वर्ष के जवान सुस्त होते हैं, जबकि 33 वर्ष के जवानों ने ही दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। महोदया, मैं अपने आखिर में इस योजना के लिए यही कहना चाहूंगी कि ये योजना भारतीयों के लिए भूतपूर्व होने की अभूतपूर्व योजना है। धन्यवाद। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह योजना कई मायने से सेना एवं भारतीय युवाओं के लिए सही साबित होगी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। महोदया, इससे देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को देश की रक्षा करने का मौका मिलेगा एवं हर 4 साल बाद नए लोग आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा। इससे भारतीय सेना की जो औसत उम्र है वह 33 वर्ष से 26 वर्ष हो जाएगी, बल्कि आज से 50 वर्ष बाद जब हमारे देश की युवा बूढ़ी हो रही होगी तब हमारी भारतीय सेना युवा रहेगी। महोदया, 25% युवाओं को पुनः रखा जाएगा एवं 75% युवाओं को मुक्त कर दिया जाएगा, बल्कि उनको सरकार की ओर से 12 लाख की निधि भी प्राप्त की जाएगी। महोदया, जो युवा सेना से रिटायर्ड हो गए उनके पास देश की सेवा करने का अनुभव होगा एवं उनको अन्य विभागों में भी नौकरी को प्राथमिकता दी जाएगी। महोदया, अग्निपथ योजना 2022 के द्वारा 26 साल की उम्र में जो युवा है उनके पास उनकी जमा पूंजी होगी और अनुशासन भी उनके जीवन में आ चुका होगा। यह अभी भी 26 साल की उम्र में आत्मविश्वास से भी भरे होंगे। महोदया, यह योजना हमारे युवाओं को स्थिर तथा बेहतरीन भविष्य को सुनहरा बनाने की योजना है। धन्यवाद। Welcome of the foreign delegates. Honorable members, I have to make an announcement. On the behalf of the House and my own behalf, I have great pleasure in extending my very warm welcome to Her Excellency Ms. Becky Johnson, Vice President of UK Parliamentary Delegation, who is on visit to India as an honoured guest. The honourable members of the delegations are Mr. Harry Granger, Senior Deputy Speaker of House of Lords, Mr. Michael Beanland, Shadow Leader of House of Lords. I wish to extend a very warm welcome to them all and wish them a very happy and memorable stay in our country. I also convey on behalf of the House and my very own behalf the very best wishes to Her Majesty the Queen, the Royal Family, the Prime Minister and the very friendly people of United Kingdom. Thank you. Thank you, Madam Speaker and honorable ministers. Today I am blessed to be here in India, that is Bharat, the land of great personalities like Mahatma Gandhi and Swami Vivekananda. It's the largest democratic country and have unity in diversity. And I am very pleased that you have invited me here. Thank you. Bill for consideration. Now, the House will take up the bill related to conduct of Lok Sabha and Vidhan Sabha elections simultaneously 2022 be taken into consideration. Parliamentary Affairs Minister, please. Madam Speaker, I beg to move the bill related to conduct the Lok Sabha and Vidhan Sabha elections simultaneously 2022 be taken into consideration. Motion moved that the bill related to conduct of Lok Sabha and Vidhan Sabha elections simultaneously 2022 be taken into consideration. Honorable Minister. Honorable Speaker, Madam, I beg to move that the bill related to conduct the Lok Sabha and Vidhan Sabha elections simultaneously 2022 be taken into consideration. Madam, the bill is to provide more effective impact on the election. Madam, the committee has noted that the first general elections to the Lok Sabha and state legislative assemblies were held simultaneously in 1957, 1962 and 1967. But this cycle was disrupted due to the dissolution of some legislative assemblies in 1968 and 1969. In 1970, the Lok Sabha was dissolved
first, second, and third Lok Sabha enjoyed full 5-year term, while the 6th, 7th, 9th, 11th, 12th, and 13th Lok Sabha was dissolved prematurely. As a result of premature dissolution and extension of both the terms, the Lok Sabha and state assemblies, there have been separate elections to Lok Sabha and state assemblies, and cycle of simultaneous elections have been disturbed in the last 48 years. The need for simultaneous election to the Lok Sabha and state assemblies is, as elections have become a big budget affair and expensive. The Law Commission of India, in its 117th report, has suggested the simultaneous election to the Lok Sabha and state assemblies for the sake of government instability. Some highlight features of the bill are: first, simultaneous election would help to reduce the massive expenditure incurred for the conduct of elections every year. Presently, the cost of holding election to the Lok Sabha, state assembly, and UPs have been pegged at rupees 4,500 crore by the ECI. So this rule will help to reduce the budget used in the elections. Second, model code of conduct has been started to the poll-bounded state or area. The imposition of MCC puts on hold the entire development program or activity. If the simultaneous election held, this period of disruption would be limited to a certain period of time. Third, simultaneous election would free the crucial manpower, which is often deployed for prolonged periods on the election duties. Thank you. Ms. Ananya, please. माननीय सभापति महोदय, संपूर्ण देश में सभी प्रकार के चुनाव एक साथ करने से यह बात सच है कि समय और पैसे दोनों की बचत होगी, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में अपनी जनता को कम से कम 3 बार अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है, जिसमें एक बार में कोई भी व्यक्ति किसी एक के प्रति आकर्षित होता है। तो यदि सभी चुनाव एक साथ होंगे तो जाहिर है इससे सिर्फ बड़े दलों को फायदा होगा और क्षेत्रीय दल लगभग समाप्त हो जाएंगे, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। केवल मत ही एक ऐसा अधिकार है जिससे जनता नेताओं की निरंकुशता पर लगाम लगाती है, और यदि सभी चुनाव एक साथ हो गए तो नेता 5 साल अपनी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे और इन पर कोई भी अंकुश नहीं रहेगा। माननीय महोदय, इतनी सारी खामियां होने के बाद भी यदि संपूर्ण देश में सभी प्रकार के चुनाव एक साथ होने का यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो कहीं आने वाली पीढ़ियों को हमारे लिए यह न कहना पड़ जाए कि मेरा घर जलाने वाले मेरे अहबाब ही थे, मेरा घर जलाने वाले मेरे अहबाब ही थे। रोशनी हुई तो एक एक का चेहरा देखा, रोशनी हुई तो एक एक का चेहरा देखा। धन्यवाद। Speaker Madam, I rise to support the bill relating to conduct the Lok Sabha and state assembly elections simultaneously. Simultaneous election is defined as structuring the Indian election cycle in a manner such that the elections of Lok Sabha and state assemblies are synchronized together. Its advantages are: firstly, frequent election leads to disruption of normal public life and the timely functioning of essential services. The holding of political rallies disrupts road traffic and also leads to noise pollution. Such disruption would be limited to a certain predetermined period if elections were held simultaneously. Second, simultaneous elections of Lok Sabha and state assemblies also help ruling party to focus on governance instead of constantly being in election mode. Lastly, the elections of Lok Sabha and state assemblies are polarizing events like question, caste, religion, and communal issues, because political leaders are often supposed to talk politically for the sake of electoral management. Former President Pranab Mukherjee had said that with some elections or others throughout the year, the normal activities of government come to a standstill because of the code of conduct. If political parties think collectively, we can change it. Thank you, Madam. Leader of opposition, please. माननीय महोदया, भारतीय शासन व्यवस्था का एक प्रमुख घटक लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता सर्वोपरि होती है। जनता हर 5 वर्षों में चुनावों के माध्यम से अपनी सरकार का चुनाव करती है। ऐसे में आज मंत्री जी ने हमारे सामने ऐसी प्रतिक्रिया रखी है जिसमें कहा गया है कि देश के सभी चुनाव एक साथ होने चाहिए, जो मेरे अनुसार बिल्कुल सही नहीं है। इस संदर्भ में मैं अपनी कुछ चिंता व्यक्त करना चाहूँगा। तो मेरी पहली चिंता ये है कि देश में लगभग सभी जगह चुनाव कराने के लिए ईवीएम का उपयोग किया जाता है। ऐसे में देश के सभी चुनाव एक साथ होने से ईवीएम की संख्या दोगुनी हो जाएगी, जिसकी व्यवस्था करना शासन के लिए संभव नहीं है। मेरी अगली चिंता ये है कि देश में एक साथ चुनाव होने से
अतिरिक्त संसाधन, अतिरिक्त सुरक्षा बल, अतिरिक्त वित्त और अतिरिक्त कर्मियों की जरूरत होगी, जिससे देश के विकास कार्य में भी प्रभावित होंगे और सरकार को इसकी व्यवस्था करना मुश्किल होगा। मेरी अगली चिंता ये है कि संपूर्ण देश में एक साथ आचार संहिता लागू हो जाने से देश के सारे विकास कार्य एक साथ प्रभावित होंगे। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मंत्री जी सभी चुनाव एक साथ इसलिए कराना चाहती हैं ताकि क्षेत्रीय दल दबके रह जाए, और इस सरकार की एक सोची समझी साजिश है। मेरी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चिंता यह है कि देश में सभी चुनाव एक साथ होने से केवल राष्ट्रीय मुद्दे ही सामने आएंगे, क्षेत्रीय मुद्दे गौड़ रह जाएंगे, और क्योंकि राष्ट्रीय दलों के पास ज्यादा संसाधन होंगे और क्षेत्रीय दलों के पास सीमित। अंत में महोदया मैं यही कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चुनाव है, तो जनता को इसे एक बार मनाने तक सीमित न रखें। महोदया मेरी बातों पर गौर करें और अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। धन्यवाद। कृपया शांत हो जाइए, प्रधानमंत्री को सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके समक्ष पहले से प्रस्ताव एक बिल जिसके अनुसार लोकसभा तथा राज्यसभा के चुनावों को एक साथ कराने में संसदीय दल एक प्रस्ताव लेकर आया। I take this opportunity to appreciate the Honorable Minister of Parliamentary Affairs for laying this. यह प्रस्ताव प्रत्येक दृष्टि से विचारणीय है, क्योंकि ये देश के हित तथा विकास के लिए परम आवश्यक है। लोकतंत्र में चुनाव एक अभिन्न अंग है, परंतु भारत देश में एक वर्ष के अधिकांश महीनों में चुनाव होने के कारण भारत की विकासात्मक एवं प्रशासनिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा देश और राज्यों की विकास दर धीमी हो जाती है। महोदय, देश और समाज इस चुनाव के बोझ से अपने स्तर से पिछड़ता जा रहा है और ये एक समस्या का रूप लेकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। यदि यह बिल लागू होता है तो इससे समय तथा धन दोनों की बचत हो और जिसे हम राष्ट्र हित में उपयोग कर सकते। अतः मेरी आपसे और विपक्षी दल से यही विनती है कि वे इसमें अपना समर्थन दें तथा इस बिल को सर्वमान्य रूप से लागू किया जाए। धन्यवाद। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो माननीय सदस्य तथा विपक्षी साथियों को उनकी चिंता से मुक्त कर दूं कि जैसा कि नेता विपक्षी ने कुछ चिंताएं जताई हैं कि एक साथ चुनाव में ईवीएम का उपयोग किया जाता है और एक साथ चुनाव होने के कारण जो ईवीएम की संख्या दुगनी करनी होगी, जिसके लिए शासन को पैसों की व्यवस्था करनी होगी। तो इसका हल इस प्रकार है कि जो पैसे अलग अलग चुनाव में लगाए जाते थे वह एक साथ चुनाव होने के कारण बचे, तो उन पैसों को हम लोग ईवीएम की खरीद में लगा सकते हैं। दूसरी चिंता यह बताई गई है कि एक साथ चुनाव होने के कारण छोटे दलों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जनता उसी को चुनती है जो इनके लिए काम करे और उनके लिए ठीक हो, तो इसकी चिंता व्यर्थ है। तीसरी चिंता यह बताई गई है कि चुनावी कामों के लिए अधिक से अधिक लोगों की जरूरत होगी, जिसका उपाय आसान तो नहीं पर मुश्किल भी नहीं। इसके लिए हम लोगों को अलग अलग क्षेत्रों से चुनावी कामों के लिए बुलाया जा सकता है। इसी के साथ आपकी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए मैं माननीय सदस्य तथा विपक्षी साथियों को इसका सहयोग करने के लिए कहती हूँ। मैडम, I have answered most of the points raised by the members in the course of my speech. Other parts of the bill our Honorable Prime Minister have already addressed. I once again thank you for your support and need your support to implement this measure. I request the House to pass the bill. The question is that the bill related to conduct of Lok Sabha and state and the Vidhan Sabha elections simultaneously 2022 be taken into consideration. Those who are in favor will say aye. Aye. Those who are against it will say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, and the ayes have it. The motion is adopted. Clause by clause consideration. Now, the question is that clause 2 to 10 stands for of the bill. There is one amendment moved by Ms. Ananda in clause 3. Madam, are you moving it? No, madam. In view of the reply given by the minister, I am not pressing my amendment. There is one more amendment in clause 5 by Mr. Kushagra. Sir, are you moving it?
Yes, madam, I am moving it. Now, the question is, the clause 2 to 10 stands for of the bill. Those who are in favor will say aye. Those who are against it will say no. I think the noes have it, the noes have it, and the noes have it. Now, the question is, the clause 2 to 10 stands for of the bill. Those who are in favor will say aye. Those who are against it will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, and the ayes have it. The motion is adopted. Now, the question is, with clause first, the enacted formula and the title of the bill stands for of the bill. Those who are in favor will say aye. Those who are against it will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, and the ayes have it. The motion is adopted. Parliamentary Affairs Minister. Madam, I move the bill be passed. Now, the question is that the bill is passed. Those who are in favor will say aye. Those who are against it will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, and the ayes have it. The motion is moved that the bill is passed. Now, the House is adjourned to meet again tomorrow at 11 a.m. Thank you. Sound, let's go. It was really such a wonderful presentation and very important. माननीय प्रचार महोदय और मेरे विद्वान साथी और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ने जो यूथ पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग किया, ये प्रोसीडिंग एक आइडियल आदर्श संसद की प्रस्तुति है। आप रियल में देखते होंगे जो पार्लियामेंट होती है वहाँ पर किस प्रकार से झगड़े भी होते हैं, क्योंकि इसका प्रयास कराने का सबसे पहले इंडिया में 1966-67 में यूथ पार्लियामेंट की शुरुआत की गई और यह केवल मात्र दिल्ली के स्कूलों के लिए था। केवल दिल्ली में जितने स्कूल स्थित थे, लोकेटेड थे, उन्हीं स्कूलों में यूथ पार्लियामेंट का प्रोग्राम कराया जाता था। लेकिन 1978 से इस व्यवस्था को आगे की तरफ विस्तार किया गया और इसमें केंद्रीय विद्यालय को भी शामिल किया गया। 1978 से यूथ पार्लियामेंट की शुरुआत हुई है और यूथ पार्लियामेंट शुरू करने के पीछे कारण ये था कि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी तो सही ढंग से होती थी, लेकिन इतने हंगामा शोर होते थे कि जो बात सही कही जानी थी वो भी समझ नहीं पाते थे कि क्या कहा गया है, इसकी क्या आलोचना होनी चाहिए, क्या उसकी खूबियाँ हैं। तो इसके लिए देश के हमारे जो प्रतिनिधि थे, कुछ उन प्रतिनिधियों ने सोचा कि देश में एक ऐसी व्यवस्था लागू किया जाए जिससे कि हमारे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनको संसद की प्रक्रिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए और अपनी बात को हंगामा करके, शोर मचाकर, झगड़ा करके नहीं कर सकते। किसी चीज़ को बात कहनी है तो तार्किक तरीके से हम प्रस्तुत करें, पक्ष और विपक्ष। पक्ष इस बात को सिद्ध करेगा कि क्यों अच्छा है और विपक्ष ये पूछेगा कि क्या इसमें कमियां हैं। जब दोनों तरीका से एक सार्थक डिबेट होता है, बहस होता है, तब जाकर देश के विकास के लिए वो नीतियाँ या कार्यक्रम अच्छा होता है। तो आज यही जो है जोर शोर से किया जा रहा है। पूरे ये जितने भी देश के हमारे विद्यालय हैं, अभी तो जो प्रतिष्ठित विद्यालय हैं और सभी विद्यालयों में कराने की संभावना है कि हर बच्चा ये जाने कि क्या होती है संसदीय प्रक्रिया। हम जानते ही नहीं है संसद की प्रक्रिया, और जब हम प्रतिनिधि होकर जाते हैं देश के अंदर और तो वहाँ पर हमें खुद पता नहीं कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कि सभ्य भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए, इन असभ्य भाषा का प्रयोग हमें पार्लियामेंट में नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है। उस संस्था में जो गतिविधियाँ होती है उसको सारे देश के लोग, क्योंकि हमारे भविष्य के जो बच्चे हैं वो सभी देख रहे हैं।
तो देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, रेलवे मंत्री, जितने भी राज्य के मंत्री हैं कैबिनेट और राज्य स्तर के, ये सभी किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। यदि इस व्यवहार को सही ढंग से किया जाए तो आने वाली जो हमारी समस्याएं हैं बड़े आसानी से हल की जा सकती हैं। तो इसीलिए इसका हर साल जो है केंद्रीय विद्यालय और दिल्ली के जो विद्यालय हैं वहाँ पर यूथ पार्लियामेंट का प्रोग्राम कराया जाता है। अब संसद देखिए, संसद में हमारे यहाँ 2 सदन बनाई गई हैं और उसमें लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस को किसको कहा जाता है? लोकसभा को। और अपर हाउस या लोअर हाउस? नहीं, यही आपकी हो भी भूल रहा। अपर हाउस पावरफुल नहीं है, पावरफुल कौन है? तो लोअर हाउस क्यों कहा गया भाई? जो पावरफुल है और इसको लोअर कर रहे हैं। लोकसभा पावरफुल ही है लेकिन हम उसको कहते हैं लोअर हाउस। क्या इसके पीछे है किसी को कोई स्टूडेंट जो बताए कि लोकसभा को लोअर हाउस क्यों कहते हैं जबकि पावरफुल है? वही किसी क्लास का किसी को पता नहीं अभी तक। इसलिए कहा जाता है बेटा कि लोकसभा के लिए कोई जो एजुकेशन का ग्रेजुएशन या मैट्रिक इंटर पास करने कोई योग्यता नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो 25 ईयर्स का होगा वो भारत का नागरिक हो, किसी प्रकार का मेंटली डिस्टर्ब ना हो तो वो खड़ा हो सकता है चुनाव में, जीत सकता है। और उसके लिए जनता का समर्थन उसे प्राप्त है। डायरेक्ट इलेक्शन से चयनित किए जाते हैं, उनका चुनाव होता है और इसलिए वो शक्तिशाली होते हैं। लेकिन जो राज्यसभा होती है अपर हाउस, उसको जनता प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट चुनाव में नहीं भाग लेती है। उसके लिए हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वही चुनते हैं। तो उनको अपर हाउस कहा गया कि थोड़ी सी उनमें माना जाता है कि हो सकता है कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हों अच्छे चुने, तो उनको अपर हाउस कहा गया। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन, क्योंकि इसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई एजुकेशन की। हर चीज़ों की आप देखिए, जो भी नौकरी आप देते हैं परीक्षा नौकरी की, सभी में कोई ना क्वालिफिकेशन है। यदि आप 4th ग्रेड के भी आप देते हैं परीक्षा, उसमें भी 10th होना जरूरी है अब। और जहाँ भी आप देखते हैं IAS की एग्जाम हो, फिर भी आप 9th क्लास में निश्चित तरीका से आप पढ़े होंगे कि 2 तरह के होते हैं लोग। एक होते हैं जो इलेक्टेड और एक सेलेक्टेड। तो कौन शक्तिशाली होता है, इलेक्टेड या सेलेक्टेड? जब आपने देखा है एक मुख्यमंत्री जी आएंगे, हो सकता है कि आपने उदाहरण पढ़ा होगा, बिहार के मुख्यमंत्री जो राबड़ी देवी थी, कितनी पढ़ी थी? 3री क्लास, 3rd क्लास पढ़ी थी। और जब उनके साथ IAS आता तो खड़ा हो जाकर के और काम करने लगता है। तो शक्तिशाली कौन होगा? इलेक्टेड। सेलेक्टेड नहीं। सेलेक्टेड मतलब अपनी व्यक्तिगत, अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के व्यक्तित्व पर यदि आप चयनित होते हैं किसी परीक्षा में तो वो सेलेक्टेड है। इलेक्टेड का मतलब जनता चुनती है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। जिसको जनता जिताएगी वो शक्तिशाली होगा, ना कि अपने बल से आप जीत कर जाओगे। IAS की क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है लेकिन ये इतना कुछ नहीं पढ़ा है। उसके अंदर में आप सचिव रहते हैं, मंत्री जी जो है हेड हैं और सचिव जो IAS ऑफिसर है वो सभी जानता है लेकिन उनके अंडर में काम करना पड़ता है। तो ये है लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता का अधिकार दिया गया है, जनता का शासन है। तो ये जो प्रोसीडिंग कराई जाती है इसके पीछे यही सबसे बड़ा कारण है कि एक हमारे आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उसको एक आदर्श लोकतंत्र की स्थापना कैसी होनी चाहिए, कैसे पार्लियामेंट चलनी चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपने बिल पास किया, इसमें राज्यसभा हो या लोकसभा या राज्यों में विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पर बिल पास करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, 3 वाचन किए जाती हैं। फर्स्ट रीडिंग होता है, फर्स्ट रीडिंग में पहले आएगा जो मंत्री, उसको टाइटल बताएगा कि हम क्या
लाना चाहते हैं संसद में, क्या हमारा विचार है, क्या उसका दृश्य होगा। फर्स्ट रीडिंग के बाद फिर सेकेंड रीडिंग में पूरी डिस्कस होगी, एक एक पॉइंट पर 1 बाय 1 कर करके हम डिस्कस करेंगे, पक्ष और विपक्ष। तो इसमें हंगामा करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे आपने दिखाया ये आइडियल है, आइडियल पार्लियामेंट के नाम से हम जानते हैं, यानी यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं कर रहा, अपनी अपनी बात कहिए और बात करने के बाद फिर थर्ड रीडिंग जब होता है तो वोटिंग होती है। जब वोटिंग हो जाएगी और जिसके मत जितना पड़ेंगे उसके आधार पर यदि वोटिंग ज़्यादा है पक्ष की तो बिल पास होगा, और ये नहीं होगा, कम होगा तो बिल पास नहीं हो सकता। इसीलिए जब तक अधिनियम, एक्ट और बिल में यही डिफरेंस है। बिल क्या होता है, जब तक पास नहीं होता है वो बिल कहलाता है, और जब वो पास होकर दोनों संसदों से राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है, उनका सिग्नेचर हो जाता है, तो वो बिल एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो इस तरह से प्रक्रिया होती है कि किस प्रकार से हम संसद को चलेंगे, और कभी भी संसद में जाएं तो अपनी बातों को रखें, अन्यथा आप हंगामा करेंगे तो देश का हित नहीं होगा, बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है। तो ये शिक्षा देने के लिए इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, अब मैं सर से कहूँगा प्रचार महोदय से कि यूथ पार्लियामेंट के बच्चों को कुछ जो है आशीर्वाद के वचन दें, जो बच्चों में यूथ पार्लियामेंट एक परफॉर्मेंस किया यहाँ, तो उनके बारे में बताएं कि क्या कैसा। अब हम प्रचार महोदय से कहना चाहेंगे कि आकर करके आशीर्वाद वचन बच्चों को दें। यूथ पार्लियामेंट के बच्चों ने जो परफॉर्मेंस किया उस पर अपना विचार। प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। आज की युवा संसद की प्रस्तुति बेहतरीन प्रस्तुति रही। इसके लिए सभी छात्र छात्राएं जो कि युवा सांसद की भूमिका में हैं, कुछ सरकार की तरफ से हैं, बाकी विपक्ष की तरफ से हैं, इनके बीच में जो चर्चाएं हुई और जो संसदीय कार्य यहाँ पर प्रदर्शित किए गए, उन सब के मंचन से जो दर्शक दीर्घा में छात्र छात्राएं बैठे हैं उनको सीखने को मिला, और ये बहुत ही फ्रूटफुल इंटरेक्शन है हमारे स्कूल में। इसके सफल आयोजन के लिए कई दिनों से इसका अभ्यास चल रहा था। इसके लिए जो मुख्य संयोजक हैं श्री गौरव सर, श्री एस.के. राय सर और श्री रोमेश सर, सभी शिक्षकों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके प्रयास आज इस सफल कार्यक्रम के रूप में फलीभूत हुए हैं, और निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ। इसके सफल मंचन से आने वाले वर्षों में या समय में जो नीचे दर्शक दीर्घा में छात्र बैठे हैं, वे इससे प्रेरणा लेकर इस प्रकार के कार्यक्रम को तैयार कर संयोजित कर सकते हैं, और यहाँ पर इसी प्रकार से और इससे भी बेहतर तरीके से इसका मंचन कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं एक बार पुनः, जैसा रोमेश सर ने कहा, दर्शक दीर्घा में बैठे छात्रों के धैर्य की परीक्षा है। मंच पे बैठकर गतिविधि करना जितना कठिन है उतना ही कठिन धैर्य पूर्वक नीचे बैठकर सुनना है। तो इस धैर्य के लिए आप सभी शुभकामनाओं के पात्र हैं। इसी प्रकार से धैर्य पूर्वक विद्यालय में होने वाली गतिविधियों का मंचन आप दर्शक के रूप में देखिए, उससे सीखिए, और सीखे गए ज्ञान को आप अपने जीवन में उसको क्रियान्वित कीजिए, उसको अपनाइए। क्योंकि जो कुछ हम विद्यालय में सीखते हैं हमारे जीवन का यदि वो हिस्सा नहीं बन पाता है, ऐसे ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। आज जो आपने यहाँ संसद के बारे में सीखा है, संसदीय प्रणाली के बारे में सीखा है, उसकी चर्चा आप अपने मित्रों, भाई बहनों एवं माता पिता से करिए, अपने पड़ोसियों से करिए, और उन्हें ये बताइए कि इस प्रकार से युवा संसद का मंचन हमारे विद्यालय में किया गया, जिससे हमने ये चीज सीखी। हो सकता है कि इस अंतरक्रिया से आपको अपने परिचित से कुछ और नया सीखने को मिले। यदि हम टीवी देखते हैं तो राज्यसभा और लोकसभा टीवी पर ये जो गतिविधियां संसद में की जाती हैं उसका सीधा प्रसारण किया जाता है।
और पुनः प्रसारण भी उस पर चलता रहता है। और वहां से भी देखकर आज जो विद्यालय में गतिविधि हुई है उससे उसको कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि वास्तविक स्थिति में किस प्रकार की गतिविधियां संसद में होती है और एक आदर्श स्थिति की जो मंचन यहाँ पर किया गया है, जो प्रदर्शन किया गया है, उसमें और वास्तविक स्थिति में कितना अंतर है, ये जानने के लिए आपको टीवी पे जो राज्यसभा लोकसभा टीवी पे जो संसदीय कार्य प्रणाली का सीधा प्रसारण होता है, अभी मानसून सत्र चलेगा, ठीक है, तो वो 12 अगस्त तक चलेगा। 12 अगस्त तक मानसून सत्र के दौरान जो संसदीय कार्य होंगे उसका प्रसारण लोकसभा और राज्यसभा टीवी द्वारा किया जाएगा। आप कभी समय निकाल के उसको देखिए और उसमें जो भी प्रक्रियाएं दिखाई जाती हैं उसके बारे में अपने शिक्षकों से प्रश्न पूछिए और अधिक जानने का प्रयास करिए कि आप किस प्रकार से देश की संसदीय प्रणाली में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। आप अपने आप को वहां पर किस रोल में फिट पाते हैं, वोटर के रूप में या एक सांसद के रूप में, एक उम्मीदवार के रूप में, एक स्पीकर के रूप में। ऐसा कौन सा रोल है, कौन सी भूमिका है जो आप अपने लिए चुन पाते हैं, अपने आप को उस भूमिका में देखते हैं। इस बात पर विचार करिए और सोचिए देश की संसदीय प्रणाली में आप खुद को कहाँ पाते हैं और अपने आप को किस प्रकार की भूमिका में देखना चाहिए। और इस बारे में चर्चा करिए अपने मित्रों से, अपनी कक्षा जो दूसरा नए ज्ञान का उन्होंने विकास किया, उनको ज्ञानार्जन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।